अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मुबारक हाशमी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं ग्लोबल न्यूज़ उर्दू। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शमसानी पिंड में, जहाँ पे एक लोहार की दुकान है। आपको इस पेशे के एतबार से मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देता चलूँ कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की नस्ल से एक नबी गुज़रे, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, जिनका सिलसिला नसब यहूदा से जाके मिलता है। ये बनी इसराइल के बहुत बड़े बादशाह थे। अल्लाह पाक ने इनको बहुत सी नेमतों से नवाजा था, बहुत से मौजज़ात इनको दिए थे, और सबसे बड़ी बात ये थी कि ये लोहे का काम करते थे, लोहे की ज़रें बनाते थे, तलवारें बनाते थे, ढालें बनाते थे, और इनके हाथों में लोहा बिल्कुल नरम हो जाता था, जैसे मिट्टी हो जाती इस तरह लोहा नरम हो जाता था। तो हम ऐसे ही पेशे से वाबस्ता एक ऐसे शख्स से बात करेंगे जो पुश्त दर पुश्त इस पेशे से वाबस्ता है और काफ़ी अरसा से शमसानी में ये काम कर रहे हैं। उनसे हम बात करते हैं। आइए, ये हमारे साथ हैं जग्गा लोहार, जो आसपास के इलाकों मल टाउन, फैसल टाउन और बहुत दूर दराज से लोग इनसे ये काम करवाने आते हैं। इनसे बात करते हैं ये कब से काम कर रहे हैं और कितनी नस्लों से ये काम कर रहे हैं और कहाँ कहाँ से लोग इनसे आके ये काम करवाते हैं। जी जग्गा लोहार साहब, ਇਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਨਸਲ ਚੱਲੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਹੁਣ ਤਿਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਬਾਪ ਦਾਦਾ, ਉਹਦਾ ਦਾਦਾ, ਉਹਦਾ ਬਾਪ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਆਦਮੀ ਸਨ ਨਾ ਲੋਹਾਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ, ਉਹ ਸਭ ਨੇ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਲਿਆਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਕੱਲੇ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਲਿਆਉਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਦਾਤਰੀ, ਰੰਬਾ, ਤਲਵਾਰ, ਕੈਂਚੀ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਈ ਹੋ ਗਈ। ਮਾਲੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਕਰੀਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਈ ਦੀਆਂ, ਕੁਛ ਨਵੀਆਂ ਬਣਾਈ ਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਜਦੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦਾਤਰੀਆਂ ਜਾਂ ਰੰਬੇ ਜਾਂ ਕਈਆਂ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ, ਔਰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੱਗੇ ਲੋਹਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਦੁਕਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਫਨ ਨਾਲ ਇਤਨਾ ਮੁਖਲਿਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੀ ਕਸੂਰ ਤੱਕ, ਕਾੜੇ ਤੱਕ, ਲਾਹੌਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਣਕਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਦਾਤਰੀਆਂ ਲਿਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਾਤਰੀਆਂ ਬਣਵਾ ਕੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਹਦਾ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਛੁਰੀਆਂ, ਪੱਠੇ ਕੁਤਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਾਤਰੀਆਂ, ਦੰਦੇ ਕਢਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਵੀਆਂ ਦਾਤਰੀਆਂ ਵੀ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਲੋਹਾਰ ਕੋਲ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਬਕਰਾ ਈਦ 'ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ 10-10, 15-15 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ, ਬਲਕਿ ਮਹੀਨਾ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਣੇ ਤਮਾਮ ਔਜ਼ਾਰ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਜੀ ਟੋਕਨ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਟੋਕਨ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਈਦਾ, ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਈਦਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰਗੜ ਕੇ ਤੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਠੱਪ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਈਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਪੈਸੇ ਲਿਖ ਦਈਦੇ ਨੇ, ਟੋਕਨ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਦਈਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਟੋਕਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ 1000 ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਟੋਕਨ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ 1000 ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਟੋਕਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਤੇ ਸੁਣਨ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਦੋਸਤ ਹਜ਼ਰਾਤ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਣ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਬਸ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੀ ਹੋਏ ਤੇ ਗਾਣਾ ਗਾ ਲਈਦਾ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾਓ। ऐ दुनिया वालो शराबी न समझो, मैं पीता नहीं हूँ पिलाई गई है। यहाँ कदम लड़खड़ाए वही राह हमको दिखाई गई है। किसी को मिले हैं
झलकते ही प्याले किसी को नजर से पिलाई गई है। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत आवाज़ है। जैसे आरफ लोहार, बशीर लोहार गाते रहे हैं, ये भी बड़े सुर में हैं। इनको भी किसी की दुआ लगता है। अच्छा, आपके ये जो काम आप कर रहे हैं, लोहार का काम, आपके बाद कौन ये काम चलाएगा? मेरा बेटा कर रहा हूँ काम, शबीर हुसैन जो बैठा है ना मेरे पास। अच्छा, इनके बाद इनके दादा और परदादा नस्ल दर नस्ल ये काम करते रहे हैं। अब इनका बेटा है जो, वो इनको काम को आगे बढ़ाएगा। वो बाकायदा पूरे कारीगर है, हर किस्म का काम करता है। वो उससे पूछते हैं कि उसको ये बाप का काम कैसा लगा। शबीर हुसैन, ये आपको कैसा लगा आपके वालिद साहब का काम जो नस्ल दर नस्ल आप चला रहे हैं? तो आपको ये कैसा लगा कि दूसरे काम आप करने की बजाय ये काम कर रहे हैं? यही काम हमारा एक तो ज़ाती है और इसमें मुझे बहुत खुशी होती है काम करने में, और किसी काम पे मुझे दिलचस्पी नहीं है। ये बाप दादा का काम है, जो ये इसको ज़िंदा भी रहना चाहिए था, इसलिए आपने शायद ये चूज़ किया होगा। हाँ ज़रूर, इंशाल्लाह ये नस्ल पर नस्ल चलता आएगा, ऐसे ही चलेगा जब तक हम है, ये चलता ही जाएगा। बहुत शुक्रिया। हम इधर आए थे जग्गा लोहार शमशानी खुई, जिसके काम के चर्चे कसूर, पत्तों की, रायविंड और लाहौर के आसपास के इलाकों में तो इनका बहुत शोहरत है। ये अपने हाथ से काम करते हैं, अपने हाथ से चीज़ों को बना कर देते हैं। जैसे ये लोगों का नाम सुन के कम करो। जैसे ये चारा काटने वाली मशीनें हैं, इनकी फिटिंग और इनका जो धार होती है, इसको लगाने के ये माहिर हैं। वो फाले भी खुद तैयार करते हैं। ये घास काटने वाली जो मशीनें हैं, जो ज़्यादातर ये PHA वाले इस्तेमाल करते हैं या पंजाब यूनिवर्सिटी में इस्तेमाल होती हैं बड़े बड़े पार्कों के, वो भी ये खुद बनाते हैं। और ये अपने हाथ की चीज़ें, बनी हुई चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर है और लोग नाम सुन के आते हैं इनका कि हमने उधर से काम करवाना है। लेकिन ये इनकी आप देख सकते हैं कि मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा, ये एक सादा सी दुकान है और ये सादा सा एक शख्स है जो अपने बाप दादा की मेरास को आगे बढ़ाए हुए है और पेशा पैगम्बरी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के इस काम को ज़िंदा किए हुए है और नस्ल दर नस्ल इनका ये काम चल रहा है। इन्होंने आगे अपने बेटे शबीर हुसैन, जिनका नाम है, और वो काम के माहिर कारीगर हैं और वो अपने दिन रात अपने बाप का हाथ बढ़ाते हैं। बहुत शुक्रिया। मिलते हैं आपको अगली स्टोरी के साथ।